Good morning to all students. In this video, we will learn how to create Gmail account. In the previous video, we learned about emails, fundamental email, advantages, email services, and structure of email. But in this video, it contains how to create Gmail account. After that, we will learn how to send an email message. Then what are the types of recipients. Then search engine, the new topic, that is search engine. What is search engine, how it is to be used, and what are this. Let's start with how to open a account. First, see the steps, then I will see you in the lives. Email is one of the popular free mail service provider through which we can easily create a account. पहले से हमको पता है कि there are various type of free email services is there. From this, Gmail is one of them. Then how to create a Gmail account. Let's see the steps. First, you have to open web browsers. Then you have to type in the URL box or address bar gmail.com, or in Google search engine log into Gmail account. After that, the Gmail sign-in page will be comes. Then you have to put the create an account, or you have to click on the create an account box. Then after clicking on the create an account, the registration page will be comes, in which you have to give first name, last name, date of birth, mobile number, gender, etc. etc. Then again it asks to create the Gmail account. Gmail account create करना पड़ेगा, और a list of Gmail account possibility will be given by the registration pages. तो बहुत सारा आपको रिव्यू दिखाएगा Gmail account कंसीड है, तो इस करना पड़ता है। then एक पासवर्ड भी आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर it must content uppercase, lowercase, special symbols and unique values, so that it is for security purpose. Because in normal password, someone can be known it or someone can be trapped it, but if password is highly secure or highly combination letters, then it will problem for any other, or it will be secure for you and for others. After making the passwords and Gmail account, you have to click the next option. After that, a mobile verification is asked by the browsers. The OTP will be come to event's mobile number. Then you have to register the OTP. After giving this, you have to click on the service term of service and private policy. क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक करने के बाद Gmail अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप क्रिएटेड मेल अकाउंट ऑफ पासवर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हम लिख सकते हैं www.com। ये इसलिए आ रहा है कि मैं पहले से अकाउंट में लॉगिन कर किया हूँ। इस फर्स्ट लॉग इन टू साइन इन कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ अकाउंट अभी आ गया। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पे यूजर नेम देना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट करने से पासवर्ड।
तो हमें क्रिएट अकाउंट के बाद इधर पर क्लिक करना है। मैं पहले से यहाँ पर लॉगिन हूँ कर है, तो यहाँ पे देखो पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, लास्ट नेम देना पड़ेगा। फर्स्ट नेम नेम हमने क्रिएट किया @gmail। ओके है, यहाँ पर है कि ना के नेम पे बंदा है, तो इसमें क्लिक करना है। हो गया। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे मिक्सचर होना चाहिए। कन्फर्म पासवर्ड साइन इन। इसमें जब क्लिक करने के बाद फिर यूजर नेम पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल वगैरह ये सब कुछ मांगता है, मगर यहाँ पर है बिकॉज फिर मैं पहले से ही लॉगिन हूँ। तो इसके लिए मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ डिटेल। लेट्स सी द वीडियो। आपका स्वागत है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे ईमेल आईडी बना सकते हैं। आजकल के ज़माने में सबके पास एक ईमेल आईडी होना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, जो कि कई जगह पे काम में आती है। अगर आप अपने फ़ोन से ईमेल आईडी कैसे बने वो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोल लीजिए और उसमें जीमेल साइन अप लिख के इंटर कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सारी वेबसाइट खुल गई है, लेकिन आपको सबसे पहला वाला जिसमें लिखा होगा जीमेल क्रिएट योर गूगल अकाउंट, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा वाला यानी कि जीमेल साइन इन पे क्लिक कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, वो ही खोल लीजिए। फिर आपको ईमेल और फ़ोन नंबर देने का जगह दिखाई देगा, लेकिन आप उस पर क्लिक मत कीजिए। आप नीचे आपको एक ऑप्शन शो करेगा मोर ऑप्शन में, आप मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा, तब आपका वही पहला वाला पेज ही खुलेगा जिसमें लिखा होगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट। फिर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, उस पर आपको अपना डिटेल्स लिखना पड़ेगा। सबसे पहले नाम लिखने का जगह होगा, अपना नाम लिख दीजिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो अपना नाम लिख दीजिए, किसी और का बना रहे हैं तो किसी और का नाम दे दीजिए। अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हैं तो कंपनी नेम दे दीजिए, और बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो बिजनेस नेम दे दीजिए। उसके बाद आपको यूज़र नेम यानी ईमेल आईडी लिखने का जगह दिखाई देगा, उस पर आप अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई रेड कलर का वार्निंग ना दे जिसमें लिखा होगा दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर। इसका मतलब ये है कि इसी नाम से पहले कोई ईमेल आईडी बना चुका है तो आप सेम नाम से नहीं रख पाएंगे, आपको कुछ नया लिखना पड़ेगा। अगर आपका ईमेल आईडी जो आप लिख रहे हैं वो यूनिक हुआ तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको क्रिएट ए पासवर्ड का जगह दिखाई देगा, उस पर आप अपना पासवर्ड इंटर कीजिए, लेकिन ध्यान में रखिए कि पासवर्ड यूनिक होना चाहिए, जो किसी को पता ना हो और कोई खोल भी नहीं पाए। पासवर्ड के लिए 2 जगह दी जाएगी, आपको वही पासवर्ड 2 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, पहले डेट दे दीजिए, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर साल दे दीजिए, फिर जेंडर चूज़ कर लीजिए, मैं मेल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर इंटर करने का जगह दिखाई देगा। मैं इंडिया से हूँ इसीलिए मेरा पहले से इंडिया चूज़ है। ये फ़ोन नंबर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाद में आप अपना पासवर्ड भूल गए तो 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP नंबर आपके फ़ोन नंबर पे भेजा जाएगा, जिससे आप उस अकाउंट को फिर से खोल पाएंगे। तो अपना नंबर लिख दीजिए इसमें। उसके बाद योर करेंट ईमेल एड्रेस, मतलब अगर आपका पहले से कोई ईमेल एड्रेस है तो उस पर आप लिख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जो जीमेल अकाउंट आप अभी बना रहे हैं उसको कोई अगर खोलने की कोशिश करेगा तो आपका उस पर जो अभी मेल आईडी देंगे उस पर आपको मेल चला जाएगा कि ये कोई खोला है इस जगह पे इस टाइम पे। अगर आप ये पहली बार ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं या फिर आप ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको खाली छोड़ दीजिए।
उसके बाद अपना लोकेशन चूज़ कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाई देगी, फिर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वेलकम मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा योर न्यू ईमेल एड्रेस इज़, जो आप ईमेल आईडी दिए होंगे वो दिखाई देगा। उसके बाद आपका @gmail.com भी दिखाई देगा जो आपका जीमेल आईडी है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए एक बार खोल के देख लेते हैं कि बना है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी बन चुका है, एक गूगल की तरफ से मैसेज आया हुआ रहेगा। अगर आपका कोई ईमेल आया तो आपको वो सामने में ही दिखाई देगा। अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो ऊपर कंपोज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको टू में जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आप जो लिख के भेजना चाहते हो वो लिख दीजिए। उसके बाद सेंड कर दीजिए उसको। तो हमने देखे हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट्स। नाउ हाउ टू सेंड ए ईमेल मैसेज। पहले भी हमने बताए थे हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा, उसमें यहाँ पर भेज रहे हैं वहाँ पर रेसिपिएंट एड्रेस देना पड़ेगा। और हम सीसी और वीसीसी भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा बाद में कैसे। उसके बाद सब्जेक्ट में ऐड करना है, मैसेज लिखना है, सेंड करना है। कंपोज में गया, ओके जगह में लिख देना है जहाँ पर भेज रहे हैं। हेलो लिख देना, फिर लिखना, सेंड हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ रिसिपिएंट में की जगह में जहाँ पे भेज रहे हैं उसका एड्रेस होगा। कार्बन कॉपी एक सीसी में है जो कि, और वीसीसी में आ रहा हूँ यहाँ करता हूँ। रेडी मिल्क भेज रहा हूँ, तो बस सीसी है यहाँ पे, और दूसरा लिखा प्लीज और एनीथिंग। मगर यहाँ पर एक क्लिक करने के साइड में सीसी लिखा है, वीसीसी लिखा है, मैंने कार्बन कॉपी वीसीसी में लाइन कार्बन कर देने और एक यानी इसी मैंने जो भी हेलो में भेज रहा हूँ। तो काम है जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं, जो भी टू को जाएगा जो मैसेज वो सीसी को भी जाएगा, या वही सेम मैसेज दूसरे को जाएगा। एक्चुअली में हम भेज रहे हैं टू, मगर हम सीसी को उसको बताना चाहते हैं। जैसे ये मैं भेज रहा हूँ लोकेशन कोई भी ऑफिस को, भुवनेश्वर को, तो उसका कार्बन कॉपी एक मैं प्रिंसिपल को भेज, मतलब मैं एक लेटर भेजा हूँ जो कि उसका इंफॉर्मेशन में प्रिंसिपल सर को देना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल सर और मैडम को उनके एड्रेस को, और वही ऑफिस को हम टू में लिखना, कार्बन कॉपी है एक कॉपी देना है उनको। ठीक है, हम बीसीसी लिखना चाहते हैं। बीसीसी क्या है? बीसीसी भी वही काम करता है, वही सेम मैसेज को दो जगह में भेजेगा, मगर बीसीसी में टू को पता नहीं चलेगा बीसीसी कहाँ, वो मैसेज कहाँ और कहाँ कहाँ पर गया है।
अथवा पीसीसी को भी पता नहीं चलेगा कि वही मैसेज कहाँ-कहाँ, यानी मैं एक दो मैसेज भेजूंगा, एक वेबी ऑफिस को, प्रिंसिपल ऑफिस को और टीचर लोगों को, 3 जगह भेजा हूँ। अगर पीसीसी में एड्रेस को लिखे हैं इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ है। पर सेम मैसेज, ये है पीसीसी। सीसी इट मीन्स कार्बन कॉपी। टाइप हियर द एड्रेस ऑफ पीपल हु आर नॉट मेन रिसिपिएंट। मेन रिसिपिएंट वो नहीं इसका, बट यू वांट टू सेंड ए कॉपी। ब्लाइंड कॉपी क्या हो रहा है, वहाँ पर एड्रेस टाइप करना है पीपल को जहाँ भेजना चाहते हैं, विदाउट अदर रिसिपिएंट नोइंग, दूसरे और कोई उनको पता ना चले कि वही मैसेज कहाँ। नाउ कम टू सर्च इंजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सर्च इंजन। सर्च इंजन किसको कहते हैं? यूजिंग इंटरनेट a lot of information can be searched, like search related article, jobs, news, books, product, medicines, etc. हम इंटरनेट को यूज करके बहुत सारी चीज सर्च कर सकते हैं, जैसे बुक्स वगैरह, नए नए बुक अथवा न्यूज वगैरह जानते हैं, जॉब्स कहाँ निकला नहीं निकला, मेडिसिन प्रोडक्ट के बाबत रिव्यू, ये सब कुछ हम इंटरनेट को यूज करके जान सकते हैं। बट since so much information available internet, it is not possible to remember all the website. सभी वेबसाइट को हम याद करना असंभव है, because there are lots of information, there are lots of website there. सभी वेबसाइट को याद करना बहुत कठिन, इसलिए सर्च इंजन को व्यवहार किया जाता है। सर्च इंजन इसलिए यूज किया जाता है। तो वो सर्च इंजन क्या क्या है? सर्च इंजन का काम है that is whatever we type on the search engine box, सर्च इंजन बॉक्स के अंदर जो भी हम टाइप करते हैं, ये क्या करता है? सर्च इंजन ऑटोमेटिकली सर्च करता है वेबसाइट, लोगों को वेबसाइट www में ऑटोमेटिकली वो सर्च करने लगा, वही के बाद क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा, जो रिजल्ट निकलेगा उसको। देन चूज वेबसाइट विच जो लिस्ट आएगा उसको आप क्लिक कर सकते। गूगल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर सर्च इंजन, लाइकवाइज बिंग, आक्स, याहू, ये सब कुछ एक सर्च इंजन। तो कैसे यूज करते हैं? पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट गूगल है, साइड में लिख दिया, वो इसका URL यहाँ पर लिखना पड़ेगा, google.com URLs। तो इंटरफेस यहाँ पर तो सर्च इंजन अभी हम करेंगे, क्लिक कर दे तो वेबी का कितना सारे आया है, वेबी.in वेबसाइट आ गया। उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट, जहाँ जहाँ पर वेबी है वहाँ वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट में, तो इसी में आप जो आपको अच्छा लगता है अथवा जहाँ पर इन्फॉर्मेशन है तो क्लिक। उसी प्रकार की और वेबसाइट वगैरह और सर्च इंजन क्या क्या? आक्स, www.ask, ये आ गया सर्च इंजन में। हु इज द स्टूडेंट ऑफ रिलेटेड। उसी प्रकार का बहुत सारे हम सर्च इंजन देख सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करते हैं? टाइप द टॉपिक इन द सर्च बॉक्स of search engine and click the search option, then their list of result will become, then you have to list of website related to the topic will become, then you have to click the position जो हमने बताया ये बॉक्स है, इसमें फ्री जॉब अलर्ट ठीक है, वेबसाइट जो जॉब के रिलेटेड
है कि क्या मैंने लिंक वेबसाइट में है जॉब रिलेटेड सब। तो सर्च इंजन से हम जा सकते हैं, नहीं तो मानुअली हमको उसका यूआरएल याद करना। उसके बाद ये है कि उसका डेफिनेशन क्या है। इट इज ए प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट फॉर specify keyword and return a list of document where the keyword comes। यानी जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं इसको कीवर्ड कहते हैं। फ्रेजर सॉरी हमने इसमें लिखे हुए भी कीवर्ड फ्रेजर फूड, और हमने ये लिख दिए कीवर्ड्स। हमको मालूम नहीं कि क्या है हमारी फ्रेजरपुर फ्रेजरपुर वेबसाइट, तो लिख दे तो ये एक कीवर्ड है। वो कीवर्ड जहाँ पे मैच करेगी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली और सर्च इंजन ऑटोमेटिक चले आएगा। यहाँ पर देखो ऊपर में है वेबी एफजेड फोटो, ये वाला है वेबी फ्रेजरपुर वगैरह है। तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जहाँ पर कीवर्ड मैच करेगा वही को रिटर्न करेगा एप्लीकेशन। इट इज डिजाइंड सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द www फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर से और इंफॉर्मेशन सर्च कर, यानी जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो रिट्राइव कर रहा है वो www और FTP सर्वर से ही रिट्राइव कर। FTP फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, उसकी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। इसके साथ ईमेल खत्म हो गया है, ईमेल का, और इंटरनेट चैप्टर भी खत्म। पहले दो तीन जो है टाइप्स ऑफ इंटरनेट ऐसे उसका भी एक वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि उस समय में वीडियो नहीं लगा था, मगर आप एग्ज़ाम के लिए इसका भी तैयार होना होगा। और जीमेल और सर्च इंजन भी इसमें आएगा। थैंक यू। नाउ द वीडियो